My name is Deepthi Rohila and I've secured All India rank 39. And this was my second attempt, and my optional is geography, wherein I've secured 323 marks. And I would be focusing on geography option strategy. And before that, I would say that it is my subjective strategy. So pick and choose whatever elements you feel aligns with your approach, and you can discard whatever isn't relevant. All right. Okay, so I'll be starting with the three stages and then explain them in brief. So, with regards to prelims, I believe that it is the most dreadful stage, as we all know, but there is also a method in the madness. I mean, I can say that because I've cleared prelims twice, and I think I could crack the code of prelims. So, which is that you should be very thorough with the basic sources. I mean, I couldn't even count how many times I revised Lakshmikant, Spectrum, and okay, Spectrum, you can say that modern history, the weightage is reducing, but the Tamil Nadu board NCRT for ancient and medieval, that was a go-to source for the ancient and medieval part. And I would highly recommend you to focus on the ancient medieval part because the weightage has been increasing. Then geography में NCRTs are a must, and conceptual clarity is very, very important in polity, economy, and geography. So these are the three subjects which require you to have conceptual clarity. And even if they have a question which includes a lot of variables, then also we can solve that if our basic concepts are clear. Right. So these subjects form the core wherein we need not be worried if something, say, out of current affairs is asked, because there will be a few statements that will be able to eliminate if we have read the static sources well. All right. Then coming to the subjects which require the understanding in current affairs, that are environment, science and tech, and IR. As we have seen that since last year, the weightage of IR has increased. I mean, I think more than 5 to 6 questions have been asked from that area. So that should be thoroughly prepared. And I relied on the PT 365, and the newspapers were very useful in the current related topics. Uh, and if I can share one source that really helped was the channel of Ghanshyam Gautam sir, who is an ex-IPS officer, and he has shared the Hindu ka Sunday compilation on the channel, on his Telegram channel. So that I referred, and it is just a 40-page PDF. And once you refer it, 1 year ka current affairs gets covered very nicely. So that you can refer. And so this is about the static basic sources about the prelims paper one. Then coming to paper two, that is CSAT, and we should take it as paper two only and not as something qualifying, because it has become really, I would say, a very important a paper to be cracked, and it is, we should not see it as something qualifying, right? It requires its due attention, and most of the times we do not refer it well, or we do not practice because of the wrong assumptions that either we are good in English or we are good in maths. So I think it doesn't work that way. And since last year, CSAT is I mean, shouting loud that you should focus on it and give its due attention. So this is about the sources. Now we'll come to the strategy part, or how do we approach the paper solving strategy of prelims. So in that, I would say that the mock test and the PYQs are really crucial, because from there we get to know how to solve the questions, and we get the knack of solving the MCQs. So what I used to do, that is my hack that I've developed, ki if we have read a topic and we are getting bored, then we'll solve say 10-15 questions from PYQ. So for that, I refer to Mrunal sir's 25 years PYQ book, and say I have been reading polity for last 1 hour and I'm getting bored, or say my productivity is declining and I'm aware of that. So I'll just open that book, solve 10-15 questions, and some question will get wrong, some will get right. So then I'll get a break, and that break is also planned, that we are solving PYQs, right? So again, after solving, we get another energy. Okay, we have to look the questions from this lens. So that becomes really helpful. You can use that. And in CSAT also, I have practiced every topic. I mean, previous 10-year topics I prepared. And the source for that is again Ghanshyam Gautam sir's channel, wherein he has
posted a PDF wherein topic-wise questions are delineated, and after that, I've referred to a book by Arihant Publication, and it has really high-level questions that are being mentioned. So I practiced a level up the questions that are being asked in the CSAT these days, and if in future they ask a more difficult or say a question involving many variables, then I'll be able to solve them. So by that I developed the confidence that okay, I've developed the knack of it, and now I just have to practice. So practicing by giving the mock test, and I would say that there is no fixed number of giving mock test. In my earlier attempt I have given 80 mock test, and this time around 20 k round I've given the mock test. So I would say that you are the best judge how much are you getting wrong. If say incorrect and current statements are you are getting confused, it means that it requires a lot of practice, and so the mock test number can be increased. So that's about my strategy. Now I'll be taking your doubts regarding prelims. All right. Okay, so somebody has asked geography option strategy. I'll share that in brief after a while. I'll be answering your prelims related doubts. If you have any, you can please post them in the live chat. Okay, so somebody has asked current affairs strategy for both prelims, subject-wise, and mains. Okay, so in prelims, I would say that the three subjects, as I said, environment, science and tech, and IR requires a greater focus on current affairs. And polity, economy, geography, they are more conceptual topics. So we need to be mindful of what we are reading. I never read the PT365 for polity or economy because I feel that my understanding is broadly developed, and I refer to the Win series by Mrunal sir. That was really helpful. And for means, I'll come to that in a while. Is 25 possible if we start now? It's very much possible. Uh, Motivation. See, motivation is very a subjective term, right? External motivation everybody has. Internal also we have. I mean, regarding the diversity of the work and the work profile that we get, and how connected we feel to the public at large when we join the service. But before that, I would say that one should be mindful that this examination is a pen and paper examination, right? Services, diversity, and that is all right. That is just the outcome that we'll get. So one should be very mindful of where are we visualizing us. So we should be visualizing what I'll do next day rather than what I'll do after clearing, right? That will eventually happen, but one should always visualize another day. So I'll be reading polity. So what I used to do a night before sleeping, I would visualize what all topics, or first I'll write the to-do list that what all topics I have to prepare, and night way before sleeping, I will just quickly visualize. Okay, I'll do that, do that, do that. So in that way, I'm very excited for the next day, right? So that was my motivation, and I would say that motivation need not be related to exam solely, because we should not attach what to call it our worth to the examination. So we are somebody outside the examination also. So motivation could be a very childish thing, say aloo ka paratha or a good vegetable at home. So if so I used to give myself a treat that if I study well today, so I'll get this treat. So we need not attach a motivation to very long term thing, right? So short term motivation if we have, then it becomes and then we are excited also, right? Okay, how do you for pre how to analyze PYQ? Okay, so PYQ analysis have certain things. First is analyzing which subject is getting more weightage. So we have been seeing that ancient and medieval are getting more subject, I mean more questions, so it requires more focus. Then what are the trends? What kind of topics are being asked repeatedly? So I remember that the Jainism and Buddhism topic has really been the focus of UPSC since very since past years. So every year, I would say that indirectly or directly, one question is asked from that topic. So we'll prepare in depth regarding that topic from NCRTs, from Tamil Nadu book, and the other sources that we refer. So that is really crucial that once we get to identify the trend, our focus becomes very narrowed, that this topic requires more focus. This can be done with less focus because everybody has time crunch, right? And we can't read everything under the sun. Otherwise, there's no end to it. And I agree that the prelim syllabus is not
that well defined as main syllabus is, but the PYQs are really good, gives us a torch that where we have to let our focus and in which path we have to go forward. Right. So that's about the PYQ analysis. And yes, in the book that I referred, Mrinal sir's book, I have scribbled down the notes. I mean, so I've seen one question. Okay, I've analyzed. Oh, all right, this is the question. This is the trap that UPSC has set, and what in future what we have to focus. Apart from it, I used to analyze and Google. Say a question has been asked in Nemchand Suri. So I will just Google it, and whatever extra information I have, I'll write it down on the book. So that way, I have internalized that PYQs myself, and I've done some work there. So once I put the effort, I mean, it is time consuming, obviously, but it gives reward as well. And giving disproportionate time on PYQ will definitely be you'll be getting the proportionate outcomes otherwise, right? So that's about PYQs. Now, how to make newspaper notes. Okay. So I would say that one thing that differentiated my attempt from previous, okay, all right, bilingual I'll keep it. I'm sorry, I'll speak both Hindi and English. तो न्यूज़पेपर का देखिए, मैं सुबह रोज मेरा होता था कि मैं 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगी और 45 से 1 घंटे तक मेरा न्यूज़पेपर का स्केड्यूल होगा. तो दिस हैज मेड इनटू सिस्टम कि जाते ही न्यूज़पेपर पढ़ना है. उसके बाद मेरे आईपैड में आई हैव यूज्ड वन नोट फॉर डिजिटल नोट मेकिंग फॉर करंट अफेयर्स. तो उसके लिए मैंने सिलेबस वाइज टैब्स बना लिए. से GS1, उसमें कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड ऑल दैट, जो भी हमारे मेंस के टॉपिक्स रहते हैं. अब कोई भी न्यूज आर्टिकल आया, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल क्योंकि वो मेरे को बहुत ज्यादा, आई रिमेंबर दैट इज द मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट. So I will not just add it in internal security. I'm reading the newspaper. I've done the reading. So now I'll sit. Now it is an interesting part. So I've gamified in a way कि मणिपुर का issue वाला जो topic है, where all it can fit. It can fit in status of women. It can fill in internal security. It can be added in this international relation because Myanmar का issue था and three brotherhood alliance करके कुछ आ रहा था news में. So this is about means that I have not seen one topic as just कि this is internal security. That is the thing that I think differentiated my main score from the earlier attempts. So one should be really, I mean, this is nobody can spoon feed you this, right? I mean, there's no passive reading of newspaper. So one should be really mindful that newspaper will give you that edge because everybody is writing the basic content. It's the example, it's in some conclusion or some diagram you have taken from newspaper that can really give you good marks. So one more example I would like to share, that is of Claudia Golden's work, that is the U-shaped recovery. All right. So this is a very good diagram and simple diagram. I mean, when I was reading the newspaper, it came in my mind that I will definitely use it in status of women, in economy concept, or even in optional, because it just shows a graph and you, and then a box, then economy and women participation, primary, secondary, tertiary. So it can be drawn in just 10 seconds. And how useful it is if we read Claudia Golden's work. Now this gives freshness to your answer and it shows that how good you're able to link the concept. So that's about the note making regarding the mains. For prelims, I did not made very heavy notes. Major focus on of newspaper reading was on mains. And prelims ka I thought कि I could read PT 65 and वहाँ से it would be better covered, right? And even if I've made prelim specific notes, they were very what do you call it? They were not dense, content dense, and this interlinkage is not required there. But for mains, you have to interlink the topics. All right. Yes. Newspaper notes is done. GS2 and 3 strategy will discuss. For polity, Lakshmikant, no. For polity, Lakshmikant is not enough. I feel that from NCRT, one or two questions of philosophical type is being asked. So say, what is the purpose of constitution? And for what bureaucracy is or executive is. So they were similar sounding words. But if we know that bureaucracy or executive leg is for implementing, so implementation is the work of executive. So this is generally missed in the Lakshmikant book because it is not written from that lens. But NCRTs give us that philosophical understanding of the subject. So I would say that NCRTs are crucial. Lakshmikant book is crucial, and I would add that if somebody has the old version of the book, they should refer to the newer versions. So there is one channel, I am not remembering the name, but they have compiled the new chapters
I mean, chapters in the new edition of the book. So that is really useful because in 23 ka prelims, I have analyzed कि there are certain topics say consumer redressal mechanism. So next year they can ask on National Consumer Redressal. That body is there. I'm not remembering the name exactly, but there is one body which is there in the new editions book. So you must refer to that. And yes, that's about my sources for polity. Mains note, I'm actually compiling and making PDFs, and I will share the mains notes on a Drive link, so you can refer to that. And I think it will take few days more because it's very bulky also, and I want to give it the right justice and make it comprehensive enough. All right. Optional mains will discuss. Uh, So I took coaching for my GS from Khan Study Group, and optional के लिए I joined guidance for my foundation courses during the third year of my college, which was the COVID year. So there I got time, and that I joined. But I would say that it is not a substitute. I mean, you can complement coaching notes with the basic books, but one has to refer to the basic books. Otherwise, we'll not be able to figure out where the gaps are. Because if we, I mean, this is the mistake I feel I've done in the earlier attempt, that I over relied on the coaching notes, thinking that the basic books has been summarized in that way. That is true, but interlinking cannot be formed just by reading the notes. And books are also not to be read cover by cover, especially in the optional subject I'm talking. One should be very mindful because you can obviously get lost in the books because they are written from a different lens. So one should always refer to the PYQ and see it topic wise. I mean, is it relevant? Is it covering good content? So if two books, I would say that for optional it is very, very must and you should read despite reading many coaching institutes notes. First is the Rupa Made Simple for physical geography, and second is Majid Hussain sir's book, that is Models in Geography. And for Indian to be, everybody knows that Dear Fuller book is a really comprehensive dense book. Yeah. PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऑब्वियसली, आई मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आर रिपीटेड एंड May 65 I did not refer. I referred to Dipin sir's course, who teaches in Forum IS. So that I referred, and I was reading newspaper continuously. So I had my own source as well. Yeah, this was my second attempt. And answer writing, okay. ऑलराइट, सो आंसर राइटिंग पे हम बात कर लेते हैं. आई फील कि हर जीएस सब्जेक्ट का जो आंसर राइटिंग है वो डिफरेंट रहता है. नाउ आई थिंक आई एम डन विद द क्वेश्चंस. अब मैं मेंस का थोड़ा सा आई शेयर इन ब्रीफ एंड उसके बाद यू कैन आस्क योर डाउट्स. सो मेंस में आई फील कि हर सब्जेक्ट का एक डिफरेंट लेंस है देखने का. सो जीएस 1 से बात करते हैं. उसमें हिस्ट्री के लिए आई वुड, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट आर वेरी जेनरिक, बट हमें जो आंसर्स लिखने हैं दैट शुड हैव स्पेसिफिक एग्जांपल्स. से अगर somebody has asked on शिवा टेम्पल और नंदी वाला एक क्वेश्चन था, उसमें इफ यू मिस्ड द बृहदेश्वर टेम्पल देन इट इज वेरी विजिबल कि आपने ऑब्वियसली नहीं लिखा है, राइट. सो ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स फॉर हिस्ट्री दैट इज वेरी क्रूशियल इन आंसर्स, और वो हम प्रीलिम्स में प्रिपेयर करते ही हैं. तो बस एक लेंस हमें रखना कि ओके प्रीलिम्स का ही कंटेंट हमें मेंस में रेफर करना है, बट विद अ डिफरेंट लेंस. जेनरिक पॉइंट्स हम लिखेंगे कि देयर वाज emphasis on music and dance and medieval history. That is a generic statement, an analytical statement. But example may will write that there was a Natya Mandap in temples, in some Odisha temple. So this shows ki okay, this has become now specific. So this about history. Then about society, I would say society is very analytical and you should not be mechanical. बस ऐसे short sentences ना लिख के proper sentence formation करके that it will lead to discrimination which is harmful for sense of self and it shows the intersection of vulnerabilities. अब इसमें मैंने काफी ज्यादा keywords भी use कर दिए, intersection of vulnerabilities, discrimination. तो this is I would say a society का vocabulary. So ये एक स्मृति शाह मैम है from Vision IS and she has uploaded these keywords on her channel on Telegram. So I refer to that PDF and that was really helpful. Then coming to geography, so geography was my optional, so I did not I did not add too much focus in the GS part. But yes, one difference that I made from my previous to this attempt in geography is that I have decoded कि geography में world examples या spatial चीजें लिखनी जरूरी है. जैसे
फियोल्स का क्वेश्चन था। उसमें आई नो कि वेस्टर्न यूरोप में कहीं है, नॉर्वे के अराउंड। सो नॉर्वे के अराउंड है तो बाकी कंट्रीज में भी होगा। सो आई हैव रिटन नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, फिनलैंड, ऐसे करके, ताकि एग्जामिनर इज नोन कि ओके उधर तो है बट आई हैव रिटन सो मेनी कंट्रीज। सो इट गिव्स एन एज कि ओके यू आर geography specific answer that involves location, right? So this is about GS paper 1. Now coming to GS paper 2. Okay, I'll share my marks also. In GS1, I've secured 100, and GS2, I've secured 120, GS3, 96, and GS4, 125. All right. So GS2 may, I would say that, so polity, governance, and IR. So polity and governance may, again, you have to be analytical and writing the full, writing the full and long sentences. So I would say that here the trick is that introduction where there should be article mentioned or some act mentioned or some data mentioned. Conclusion where there should be a saying by some famous person. Say Amartya Sen has said about capability approach, or our external affairs minister had said about. I mean, his words are very famous. I mean, the Europe's problems are world's problems, but world's problems are not Europe's problems. So whenever, so see how catchy this looks. So I was very mindful whenever I hear him or read something about him that okay, I'll use that in my conclusion. So introduction, conclusion ready, set frameworks, that conclusion में keywords या saying, introduction में data, act या फिर कोई article. Now major space will be given to what is asked, और what is asked में भी we should be mindful कि हम analytical points भी दे रहे हैं, institutional points भी दे रहे हैं, और कुछ other topics से linkage भी कर रहे हैं, say governance या society. एंड गवर्नेंस में आई वुड से अगेन इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक लिस्ट बना लेना इज रियली क्रूशियल कि आई थिंक आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर हैज डन रियली गुड वर्क विद रिगार्ड्स टू पीपल्स गवर्नेंस, और स्मिता सब्रवाल मैम हैज डन गुड वर्क regarding people to people interaction. So I could use the examples in ethics also and governance also. So I prepared them both together. ओके, आई कीप इट बायलिंगुअल। तो मैंने एथिक्स के लिए एंड GS2 गवर्नेंस के एग्जांपल्स मैंने एक साथ प्रिपेयर कर लिए, ताकि मैं उसके साथ इजीली हैंडल कर पाऊँ उसको। और IR के में मेरी अगेन कुछ फ्रेमवर्क्स था कि मेरे को इन टॉपिक्स पे लिखना है, जैसे डिफेंस इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, क्लाइमेट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पीपल टू पीपल टाइज, डायस्पोरा लिंकेजेस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मेरा फ्रेमवर्क सेट है। अब कोई भी कंट्री यू आस्क, इंडिया, यूएस, इंडिया, रशिया, आई विल आंसर ऑन दीज टॉप ऑन दीज ब्रॉड फ्रेमवर्क्स। उसमें भी कंक्लूजन में सम सेइंग बाय सम फेमस पर्सन, एक यहाँ पे मैप होगा, एंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन IR, आई वुड से। एंड मैप शुड हैव सर्टेन कीवर्ड्स। अब अगर से AUKUS has been asked. So you just mentioned कि ये इंडो पैसिफिक है and this is AUKUS. तो आपने सिर्फ AUKUS ना शो करके इंडो पैसिफिक भी you have written, right? If they ask कि इंडियन, अच्छा there was one question maritime security या India's maritime outreach पे. So what I did, मैप बनाया, इंडियन ओशन की जो बाउंड्रीज है वो दिखाई, एंड नीचे इंडो पैसिफिक लिख के मेजर चौक पॉइंट्स भी मैंने मेंशन कर दिए, से दार सलाम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। So whenever somebody is checking, it's not just कि मैंने बस उसका region को highlight किया, but I've written the major choke points, which shows, I mean, you have to show your knowledge, right? Examiner doesn't know you, कितना आपने पढ़ाई करी है उन्हें नहीं पता, but हमें हम अपनी जो मेहनत है वो दिखा सकते हैं अपने आंसर्स के थ्रू, so why not write that, है ना? सो ये हो गया GS2 की स्ट्रैटेजी। अब GS3 में ओके, सो GS3 में जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है वो ये है कि आपको सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज GS3 में जो 23 का पेपर था जो मैंने दिया, उसमें 10 मार्कर्स में ही 5-6 पार्ट्स थे, और हम इतनी जल्दी में अगर लिखेंगे तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कितने पार्ट्स हैं। इफ आई कैन टेक एन एग्जांपल, एक क्वेश्चन था AI और हेल्थ केयर पे। अगर हम सिर्फ उस क्वेश्चन को AI और हेल्थ केयर की तरह देखें तो वो गलत होगा, क्योंकि हम उसी पे पॉइंट्स लिखने लग जाएंगे। बल्कि उसमें 2-3 चीजें पूछी हुई थी, तो 2-3 चीजें पूछी हुई है, तो हर एक में अगर हम 3-3 पॉइंट पे लिखेंगे तो हमारा आंसर अच्छा बन जाएगा, बजाय कि हम एक ही टॉपिक को पढ़ के उसमें 10 पॉइंट लिखे। तो ये GS3 में काफी इंपॉर्टेंट है। और अगेन ऑप्शनल की जो मेरी प्रिपरेशन थी वो GS3 में भी काम आई। और आई वुड से कि इस पेपर में GS3 में बहुत ज्यादा कंटेंट हैवी आपको रहने की जरूरत है, डेटा, एग्जाम्पल, मैप्स। सो यू हैव टू शो एग्जामिनर अगेन
कि एक क्वेश्चन था, आई फ़ील कि रामसर साइट्स का कुछ क्वेश्चन था और समथिंग फ्रॉम मैपिंग नेशनल पार्क या रामसर का। आई एम नॉट रिमेंबरिंग एग्ज़ैक्टली अभी 23 के पेपर में ही। दैट साइट 2 एग्ज़ाम्पल्स। अब ये कितना स्पेसिफिक होगा कि 2 एग्ज़ाम्पल्स दीजिए। अब जीएस 3 में व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर आस्किंग इट स्पेसिफिकली कि आप एग्ज़ाम्पल्स मेंशन कीजिए। तो उसके लिए हमें बहुत माइंडफुल रहना होगा कि हमें एग्जांपल्स वी शुड मेंशन। डिजास्टर का दे आर आस्किंग कि 2 रीसेंट एग्जांपल्स जो हैं आप उसको मेंशन कीजिए। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें न्यूज़पेपर बहुत काम आएगा। और जीएस 3 में आई हैव सीन पीपल कि उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। वो यही है कि वो कंटेंट डेंस नहीं कर रहे हैं अपने आंसर्स को, या जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मेरे भी पहले मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेगा इस पेपर में, है ना? तो वो देंगे हम। और इसमें हमें थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर नेशनल पार्क या कुछ एग्जांपल पूछा है, तो हम एक छोटा मैप बना देंगे और उसमें 2-3 शो कर देंगे। अब आपने देखिए, एक तरीका है कि आप लिख दीजिए कि ये से पन्ना टाइगर रिज़र्व या रणथंभौर टाइगर रिज़र्व। एक है कि आप राजस्थान का मैप बनाइए, या चलो इंडिया का भी बना दीजिए और उसमें 2 ये मेंशन कर दीजिए। एकदम प्रिसाइज़ भी नहीं, बट राजस्थान के अराउंड कहीं होगा। राजस्थान में होगा, एक एमपी में होगा। तो ऐसे शो कर देने से अब ये विजुअल अपील आ गई है। इफ समबडी इज़ आल्सो बोर्ड बाय चेकिंग, दे विल आल्सो गेट आउट ऑफ द स्लीप इफ दैट्स द केस। और वो विजुअली अपीलिंग बनाते हैं आपके आंसर्स को। तो जीएस 3 में बिल्कुल आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जीएस 4 में मैं कहूँगी कि जीएस 4 में 2 सेक्शंस हैं, एक तो केस स्टडी वाला पार्ट और एक थ्योरी वाला पार्ट। तो थ्योरी वाले पार्ट के लिए मैंने फोरम की जो रेड बुक है एथिक्स की, वो रेफर की थी। और केस स्टडी के लिए मैंने टॉपर कॉपीज को रेफर किया था। एंड इसमें एक शून्य आईएएस की एक बुक आती है जिसमें उन्होंने अपने मेंस के जो पीवाईक्यूज है उनके आंसर समेत एक बुक दी हुई है। तो जब मैं अपने आंसर लिखती थी पीवाईक्यू के और उनसे कंपेयर करती थी, तो मुझे पता चलता था कि मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे, तो वो मैंने वहां से पिक किया। तो आप हमेशा, अगर आपको ये देखना है कि आपका जो प्रेपरेशन है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं, तो उसके लिए आप हमेशा पीवाईक्यू और टॉपर कॉपीज पे राय कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्टैंडर्ड और उनका स्टैंडर्ड क्या है। उनका स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली अच्छी हो कि वो टॉपर है। अब हमें अपना स्टैंडर्ड उनसे अलाइन करना है ताकि वी आल्सो बिकम बेटर। So that is the key in GS4. I mean, topper copy should be your go-to source for case studies. And that's about the main strategy. And now I'll take your doubts if any. Okay, so essay के लिए I would say कि it should not be mechanical. I mean, I've talked about frameworks in GS that one should have frameworks and everything, but in essay one should be not too mechanical, right? हमने कोई टॉपिक पढ़ा, हमारे दिमाग में क्या-क्या चीजें चल रही है उस टॉपिक को लेके कि why this topic has been asked, किन-किन डायमेंशंस में हम सोच सकते हैं। उसको हमने एंड पे हम गए, रफ वर्क जो हमें मिलता है उसमें हमने टॉपिक लिखा और जो-जो हमारे दिमाग में आता जा रहा है हम लिखते गए। और फिर एंड जब हम सारे थॉट्स को एक जगह हमने लिख लिया है, अब हम फ्रेमवर्क पे आएँगे। इसका भी फ्रेमवर्क है बट इतना रिजिड नहीं है। से इंट्रोडक्शन में हमें किसी स्टोरी से स्टार्ट करना है, कोई कैचिंग स्टोरी। जैसे मेरी जो स्टोरी थी वो थी कि ज़ीरो टू ज़ेरोधा। देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड निखिल कामत हू हैज़न्ट डन कॉलेज एजुकेशन या फिर ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन। तो उसमें द टॉपिक वाज़ वेरी nicely fitted कि education is one that we learn after the formal system school education is over. So उसमें see how catchy this is, zero to zero था। और थोड़ा 2-3 चीजें एक साथ कर दी, जैसे करेज, कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। ये मैंने सब पार्ट्स लिखा और फिर नीचे कुछ डाल दिया। तो अब की बार मैंने क्या किया था कि बहुत सारे जो सब पार्ट्स है, आई मीन सब हेडिंग्स है, उनको प्रिपेयर कर लिया था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसे जो कोटेशन बेस्ड होते हैं। तो उसको मैंने रेफर किया और आपने जो मेन ऐसे था उसमें भी ऐड किया। एंड सो ये हो गया कि हमने सब पार्ट मेंशन किया। बॉडी में जो पूछा गया है उसको हम आंसर करेंगे एक फ्लो में। और कंक्लूजन में हम किसी पोयम से या पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। पॉजिटिव नोट पे एंड करने से पहले हम उसको क्रिटिक भी कर देंगे, जो भी टॉपिक दिया हुआ है। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, टॉपिक को समझाया, टॉपिक को क्रिटिक किया, फिर पॉजिटिव नोट पे एंड किया और लास्ट में स्टोरी डाली, लास्ट में कोटेशन डाली। तो ये हमारा एक होलिस्टिक क्या बोलते हैं, ऐसे प्रिपेयर हो गया। एंड yes, I was making notes for from newspaper on daily basis and ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है if you can see। और इससे जो इंटरलिंकेज बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। मेरा जो ऑब्जर्वेशन था न्यूज़पेपर्स को लेके
वो ये था कि करंट अफेयर मैगज़ीन को अगर मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डनसम लगता था और मुझे ये होता था कि मुझे फटाफट से उसको कंप्लीट करना है, राइट? बिकॉज़ स्टैटिक पे तो वी विल बी गिविंग फोकस, तो करंट पे आई वुड नॉट बी मेकिंग एनी इंटरलिंकेजेस और वो एक बहुत ही पैसिव एक्सरसाइज़ हो जाती थी। तो अब मैंने क्या फोकस किया कि आई वुड बी रीडिंग द न्यूज़पेपर और अपना स्टैटिक फ्रेमवर्क्स रेडी करूँगी एंड उसमें आई विल फिट इन। तो इसमें अगर हमने 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आई थिंक 15 ही मिनट लगते हैं हमें फ्रेमवर्क्स में अपने एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करने में। और आप सोच के देखिए थोड़ा जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, हम बैठे हमने देखा कि ये टॉपिक सिलेबस के किस-किस पॉइंट में ऐड हो रहा है। कितना इंटरेस्टिंग बन गया न्यूज़पेपर पढ़ना भी, वरना बस आप रीड करते जाइए तो इट इट डज़न्ट सर्व द पर्पस। आप रुकिए, पढ़िए, सोचिए कहाँ ऐड हो रहा है, किस सब सिलेबस के टॉपिक में जाएगा और फिर हमारे इंटरलिंकेजेस अपने आप बनेंगे और रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते एक ही अगर आप न्यूज़पेपर करंट हमने जो मैगज़ीन पढ़ेंगे अगर हम, तो वो एक बार देखेंगे हम, चलो 2-3 बार रिवाइज़ कर लिया, बट डेली बेसिस पे अगर आपको न्यूज़ आ रही है, तो आपके दिमाग में फ्लैश होती रहेगी। सो आप उसको मिस ही नहीं कर सकते, आपके आंसर में वो नेचुरली फ्लो करेंगे एग्ज़ाम्पल्स, राइट? देन न्यूज़पेपर आई रेफर टू हिंदू, हिस्ट्री की बुक द Tamil Nadu NCERT I referred, and Tamil Nadu board new NCERT for both ancient and medieval. अगेन जो मैंने कहा कि आंसर राइटिंग के लिए शुरुआत में तो मैंने टॉपर कॉपीज़ रेफ़र करी, फिर पीवाईक्यू राइटिंग के बाद मैंने शून्य आईएएस की जो बुक आती है वो रेफ़र करी और जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय था उसमें मैंने एमजीपी जो फोरम आईएएस का प्लेटफ़ॉर्म है वो जॉइन करा, तो वो इवैल्यूएट करके देते थे। तो ये आंसर राइटिंग इट्स नॉट जस्ट अ थिंग, आपको पूरा स्टेज वाइज़ उसको चलना पड़ेगा और शुरू-शुरू में खराब आंसर लिखे जाएँगे, फिर एवरेज होंगे, फिर आप अच्छे आंसर लिखेंगे, विद टाइम जो ये है हो जाएगा। अ, देन सोर्सेज़ मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं एंड मिस्टेक्स कौन सी करी थी? ओके, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। मिस्टेक आई वुड से पहली मिस्टेक वाज़ द अप्रोच टुवर्ड्स द एग्ज़ामिनेशन वाज़ वेरी फ्लॉड एंड आई वाज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि आई हैव डन I have been academically bright, so it will be very easy job for me. But that was not the case. So that was the first mistake that I was not humble. So second attempt, I was really humbled by the process, and with the wisdom of hindsight, I can say that it was necessary also. That failure was necessary for me to shape my personality as I am. Second mistake would be not relying on basic books, newspapers, and running after the coaching compilation. And third would be to say that accountability. So initial attempts may, if I am studying from 8 to 12, I will count that as my 4 hour studies. And again, afternoon, my 4 hour studies. But we do not count our breaks, do we? So this time I've downloaded an application called YPT app, wherein I'll switch it on when I'm studying and switch it off when I'm done studying, even if I'm taking a 5 minutes break. So that was all very calculated, and I have drawn the graph. Say how many hours am I studying? कुछ दिन डिप होता था, कुछ दिन ज़्यादा भी पढ़ाई होती थी, बट वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी रहनी चाहिए हमेशा। Uh, then no, I haven't created my YouTube Telegram channel, but I'll be sharing my notes on the Drive link. Uh, पढ़ा पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। बिल्कुल ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि हम जो पढ़ेंगे वो हम भूल भी जाएँगे। तो उसके लिए एक रिविज़न साइकिल होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई आज चीज़ पढ़ी है, वही चीज़ आप कल पढ़ें और फिर उसको कम टाइम लगेगा। अगर आपने 3 घंटे आज पढ़े हैं तो कल उसको हाफ टाइम लगेगा, उससे अगले दिन उसको थोड़ा और कम टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब रिविज़न अच्छी हो रही है। बट ये प्रोसेस दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि ओके रिवाइज़ कीजिए, बट जब हम सेकंड डे वही पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि कल ही तो पढ़ा था, वो बहुत ही बोरिंग लगता है हमें। तो उसके लिए आप अपने टेक्स्ट को बंद कीजिए, फिर रिवाइज़ कीजिए, जिसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। हमने कल जो पढ़ा था हम उसको देखते हैं हमारे दिमाग में क्या-क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। हमारे दिमाग में 2 पॉइंट्स नहीं आए। कौन से नहीं आए? फिर से हमने उसको खोला और उसको राउंड कर लिया। जैसे पहले अगर हाइलाइटेड था तो उसको राउंड करके हमने मार्क कर दिया। अब जब ओके राउंड वाला मतलब ज़्यादा फ़ोकस करना है। अब नेक्स्ट डे फिर हम उसको रिवाइज़ करेंगे, फिर हम बुक बंद करेंगे। जो येलो हाइलाइटेड थे हमने वो रिवाइज़ करे और जो राउंड वाले थे उसको भी रिवाइज़ करा। तो अब ये पक्का हो चुका है। ये अब एक चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट हम वीकली रिविज़न कर सकते हैं, मंथली रिविज़न कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर टाइम टेबल। तो ऐसे हम बर्डन नहीं हुए कि हमें तो याद ही नहीं हो रहा है। हमने भी इसको फन बना दिया कि लेट्स सी कितने पॉइंट्स हमें याद रहते हैं, है ना?
प्रेशर में ईज़ी क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है अगर आप प्रेशर में हैं तो। तो इसके लिए आई वुड से कि अपना माइंडसेट बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए। ये होता है प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा, कि हमने कुछ 5-6 डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़े और जो लास्ट से 6th या 7th क्वेश्चन होगा, वो ईज़ी होगा। बट हमने जो टफ पढ़ ली है, उससे हम जल्दी में होंगे कि हमने तो कोई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया, तो हमें इसको करना ही है। तो ये दिखाता है कि हमने अपने मेंटल गेम पे काम नहीं किया है। कि जितना एग्ज़ाम कंटेंट और नॉलेज का है, उतना ही ये एग्ज़ाम मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल कैपेबिलिटी का है। तो उसको भी नेग्लेक्ट ना करके आप कुछ ऐसी चीज़ लीजिए जो आपको ये सिखाए अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी थिंग। जैसे कि स्पोर्ट्स आई रियली एडमायर कि जिसने भी कोई स्पोर्ट्स खेला है, उनके उनके अंदर एक जो नेवर डाई एटीट्यूड है कि लास्ट मिनट तक जब तक सीसैट जैसे मेरे को अगर याद है कि सीसैट का जो पेपर था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था इस बार और नो डाउट कि मतलब आई कुड हैव बीन ऑन द अदर साइड आल्सो। बट मुझे पता था कि लास्ट के आधे घंटे में जब एकदम पैनिकी हम सब हो जाते हैं, तो उस समय आई हैव केप्ट माय नर्व्स वेरी कंट्रोल्ड एंड तब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो उसकी भी ट्रेनिंग आई हैव डन पहले से ही कि व्हेन आई एम सॉल्विंग द टेस्ट फॉर प्रीलिम्स आई वुड आस्क माय पेरेंट्स कि आप जबरदस्ती आइए रूम में और बातें कीजिए, डिस्टर्ब कीजिए, ताकि मैं इरिटेटेड भी हूँ, तो भी मैं अपना फोकस बना पा रही हूँ कि नहीं। ज़्यादा मुश्किल टेस्ट सॉल्व करे मैंने कुछ, उससे कॉन्फिडेंस तो डाउन होता ही है, बट आपको थोड़ी-सी फाइटिंग स्पिरिट भी आ जाती है कि कितना ही वो टफ हो जाए बट वी हैव टू क्लियर द कट ऑफ समवेयर। सीसैट में ये मेजर प्रॉब्लम आती है जो मेंटल गेम वाली है। तो उसके लिए तो देखिए अगर सीसैट ही नहीं क्लियर और अगर जीएस पेपर 1 में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो डज़न्ट सर्व एनी पर्पस और फिर बहुत दुःख भी होता है कि हमने इतनी पढ़ाई की और क्वालिफाइंग पेपर ही हमसे क्लियर नहीं हुआ। तो उसके लिए बिल्कुल अपने इस मेंटल हेल्थ को भी आप एक पार्ट रखिए अपनी जर्नी का। Drive link I'll be sharing. I am compiling the PDF copy. So once it is done, I'll share it on public platform and it will be available to everybody. एंशिएंट मिडीवल के लिए तमिलनाडु एनसीईआरटी ओनली एंड आई वुड से कि मैं बिकॉज़ इतनी डरी हुई थी कि हिस्ट्री हाउ विल आई प्रिपेयर इट इज़ सो बिग इट रिक्वायर्स मेमोरी। सो मेरा था कि मैं एक सोर्स करूँगी और उसी को अच्छे से करूँगी। और एनसीईआरटी जो आर्ट एंड कल्चर वाली है आई थिंक क्लास 11th की है दैट आई रेफर्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर। कौन-सी सिटी? सो मैंने अपने घर से ही दोनों टेस्ट सीरीज़ दिए हैं एंड डिड नॉट जॉइन एनी दिल्ली का सेंटर और समथिंग लाइक दैट। ऑनलाइन ही आई मेजरली रिलाइड। प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं? देखिए प्लान बी ये बहुत ही पर्सनल आपने सवाल लिया है। तो उसमें मैं कहूँगी कि 2 तरीके के लोग होते हैं। पहला जो प्लान बी रख के अच्छी पढ़ाई करते हैं कि हमारा प्लान बी है, नाउ वी आर सॉर्टेड अब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दूसरे लोग होते हैं जो नहीं होता प्लान बी तो अच्छी पढ़ाई करते हैं, फ़ियर इनसिक्योरिटी में। तो इसमें आई वुड से कि आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं ये देखिए। कि अगर आपके पास प्लान बी होगा तो आपको अच्छे से पढ़ाई होगी या प्लान बी नहीं होगा तो अच्छे से पढ़ाई होगी। आई मीन आई कैन से कि ये एग्ज़ाम इतना अनसर्टेन है और कभी-कभी हमारी जो एंग्ज़ायटी और फ़ियर है, वो हमें इतना ओवर पार कर लेती है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में डेफ़िनिटली आपको बैकअप लेना चाहिए। तो ये आप खुद से देखिए कि आप किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। और आई वुड से कि मैं अभी आफ्टर क्लियरिंग आई कैन से ऑल दिस बट आई वाज आल्सो वेरी एंग्शियस अनसर्टेन एंड आई बिलीव कि इसमें लक का बहुत ही बड़ा रोल रहता है सिलेक्शन में। बट एक चीज जो आपके हाथ में है और जिसमें इट इज व्हाट डू यू कॉल इट लेस सर्टेन देन अदर स्टेजेस दैट इज द मेन स्टेज। तो आप मेंस पे अपना पूरा फोकस रखिए। एंड एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने मेंस की इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली थी कि जब मेरे को प्रीलिम्स क्लियर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ मेंस की प्रिपरेशन का देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस। तो मेंस की इतनी अच्छी पढ़ाई कीजिए, अपने फ्रेमवर्क्स बनाइए, एग्ज़ाम्पल रेडी कीजिए कि आपको प्रीलिम्स वो करने का एक्साइटमेंट रहे कि आई वांट टू शो दैट आई हैव वर्क्ड सो हार्ड। अ, डज़ फियर हेल्प? अगेन ऐसे कि फियर अगर ज़्यादा होगा तो भी पढ़ाई नहीं होगी, कम होगी। एक मीडियम लेवल पे फियर होना ज़रूरी है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी हम्बलिंग और सरियल डे होता है जब हमारा इंटरव्यू होता है।
तो सुबह ऑब्वियसली हम सब जाते हैं एंड आवर पेरेंट्स accompany us. So it is a very what do you call it? It is a very proud feeling that we have reached this stage, and our parents are obviously with teary eyes. They send us inside, and once we go inside, the architecture is such that वो बहुत ही we feel very happy and proud. I can say that. And I could not, I mean, I'm not able to put my thoughts and my feelings in words, Abhi, but it is a very good feeling, and everybody takes care of कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है या आपका कुछ भी इशू हो रहा है, so that is sorted and they make the environment very calm and easy for you. And after we sit there, there is a list कि आपका कौन सा बोर्ड होगा and on which shift you will, I mean, on which number you will go on that day. So that all documentation happens. We take our pictures and that is stapled with our DAF, and then it is sent to the respective boards. And after that is sent and our turn comes, then we go to the room, and outside the room there is a chair. I think that is the moment wherein our mental strength is tested because a person is there inside, he or she is giving the interview, we are sitting there for 10-15 minutes, and that time I think we feel really what do you call it, it's a very emotional moment for us when we are sitting there. And then finally our call comes, when we go, we greet, and then chairman sir asks the question, make sure that we are very calm and composed, then members ask their question, and then it finally gets over. And once we come out of the UPSC Bhavan, then we meet our fellow aspirants, and then the pictures, as everybody is the standard pictures that we click. And the day after the interview, we have our medical. That is also a very different experience. So I hope you everybody reach there and stage. Okay. English is not an issue in interview because you get the choice कि आपको कौन सा मीडियम से आपको बात करनी है. सीसैट में मार्क्स नहीं आते हैं अटेम्प्ट का फोमो. सी सीसैट में अगेन आप देखिए ना, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है या फिर मैथ्स में आपका स्ट्रेंथ है. सो ये जो सीसैट में मार्क्स वाली जो चीज है ना, ये आप खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? और यूपीएससी इंटरव्यू में डिफरेंस होता है बिल्कुल. एक तो वाइब का डिफरेंस होता है और दूसरा क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है. आई मीन व्हाट आई कैन सी दैट मेरे को मॉक्स में सिचुएशनल एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, बट एक्चुअल इंटरव्यू में इट वाज वेरी फैक्चुअल और बस एक थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछा था. सो इट इज क्वाइट रैंडम एंड अनसर्टेन द इंटरव्यू स्टेज. उससे पहले आई वुड अगेन एम्फोसाइज, अगर आपका मेंस का स्कोर बहुत अच्छा है, then आप you can, I mean, be very confident, and then आप का एक अश्योरिटी हो जाती है that what is in my hands is means and I have given my best. डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना? सी डिस्ट्रैक्शन, सी इट्स ट्रू कि हमें अभी सोशल मीडिया पे एंड ऑल दैट इतना कंटेंट का ओवरलोड हो गया एंड वी आर डिस्ट्रैक्टेड एंड ऑल दैट. बट इसका भी वी ओनली नो ना कि हाउ मेनी आवर्स वी आर डिस्ट्रैक्टेड. उसका भी आप एप्लीकेशन से अगर आप देखेंगे, अगर आप रोज देखेंगे कि आप 3-4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, देन अगेन हमें एक वो होगी, वी फील ashamed of ourselves that we have taken this journey. It is our decision, and now we are not focusing on or not giving the attention it deserves. तो आई वुड से कि एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. और डिस्ट्रैक्शन हम कभी-कभी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी हो जाते हैं. तो आप अपना जो सर्कल है, आई वुड से दैट कीप इट लिमिटेड, बट इट शुड बी देयर, एंड देयर शुड बी फ्यू क्वालिटी पीपल इन योर सर्कल जिनसे आप बात कर सके. और डिस्ट्रैक्टेड हम कब होते हैं? जब हम नहीं पढ़ रहे होते हैं या फिर हमें बहुत ज़्यादा एंग्जायटी हो रही होती है. हम अपनी एनर्जी को कहीं और चैनलाइज करते हैं, राइट? तो उससे बेटर है कि आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो या कोई आपके फैमिली मेंबर्स हो जिनसे कि आप अपनी एंग्जायटी शेयर कीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई वापस से ऑन ट्रैक आने लग जाए. क्लास 11th एनसीईआरटी व्हिच यू, या हाँ जी, क्लास 11th की एनसीईआरटी थी. हैव यू यूज्ड पोमोडोरो? सी पोमोडोरो मैंने कभी यूज नहीं किया क्योंकि वो आई थिंक 25 मिनट्स 5 मिनट्स ब्रेक होता है, तो मुझे लगता था काफी छोटा टाइम पीरियड है. बट एवरी आवर आई वुड स्टडी, और उसको आई विल स्टॉप, आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल गो टू वॉशरूम. सो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेके आई स्टडीड. रिविजन स्ट्रैटेजी, ओके. सो रिवीजन स्ट्रैटेजी में क्या है, जैसे अगर हमने आज कोई टेक्स्ट पढ़ा, वी फाइंड कि समथिंग इज रेलेवेंट, तो हमने उसको येलो से हाईलाइट कर दिया. फिर नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो वील क्लोज इट, वील थिंक हमारे माइंड में कि व्हाट ऑल वी आर एबल टू रिकॉल.
देन कुछ नहीं भी आएगा याद तो उसको हमने रेड पेन से अंडरलाइन कर लिया कि ओके दिस आई फॉरगॉटन, तो उसको 2-3 बार और पढ़ लिया। अब अनदर डे हम वो रेड वाला तो स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, येलो वाला भी पढ़ेंगे। अब फिर हो सकता है कुछ मिस हो जाए, तो उसको एक स्टार लगा दिया। तो अब हमें पता है कि हमने अपने जो टेक्स्ट है उसको खुद ही को ही कोड दे दिया है कि रेड वाला जो है वो ज्यादा फोकस मांगता है, स्टार वाला तो बिल्कुल ही आ नहीं रहा था जब हम रिवाइज कर रहे थे। तो अब जब आप टेस्ट देंगे कुछ दिनों बाद और आपको रिवाइज करना होगा पूरा सब्जेक्ट, तब आप कैसे करेंगे? पूरा तो नहीं होता रिवाइज। तो आई वुड से कि जल्दी रिवीजन के लिए हमें ये जो कोड्स हैं अपने खुद ही बनाने पड़ेंगे, और सर्कल वाला या स्टार वाला जो भी आप करें, बट एक वो बना लीजिए डायरेक्शन कि हमें ऐसे रिवाइज करना है। देन आई थिंक I've answered most of the questions, and if you have another doubts we can take that. 26 के लिए yes 26 के लिए it's right time for you to prepare, and I would say कि टाइम टेबल में we should be mindful कि जनवरी तक हमारा जो वो है मेंस के नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाए, जीएस के भी और ऑप्शनल के भी। एंड अगर बेसिक नोट्स प्रिपेयर्ड है तो जो अदर वैल्यू एडिशन होता है या फिर हम बोले कमिटी की लिस्ट बनानी या डेटा की एक लिस्ट बनानी, वो सब हम प्री और मेंस के बीच में कर सकते हैं। बट बेसिक नोट्स अभी प्रिपेयर करने जरूरी हैं, और फेब्रवरी से तो बिल्कुल प्रीलिम स्पेसिफिक, ओनली प्रीलिम्स मोड में आई वाज देयर। यू डिसाइड आप कौन सा अटेम्प्ट एंड हाउ मच कंफर्टेबल यू आर, बट आई वुड से दैट 4 months इज नेसेसरी वेदर यू हैव क्लियर्ड इट बिफोर और नॉट। इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, तो मेरा जो इंटरव्यू है वो 2 Jan, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका था। सो फेब्रवरी से आई वाज ऑन द ड्राइंग बोर्ड अगेन। तो मैंने फिर से 2 बारी प्रीलिम्स का सिलेबस तो रिवाइज किया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे दिए थे। सो इट रिक्वायर्स वेदर यू हैव क्लियर्ड कि आपने कुछ भी किया हो प्रीलिम्स को, वो जस्टिस देनी बहुत जरूरी है। ओके, सीसेट स्ट्रैटेजी आई हैव शेयर्ड। प्री और मीन्स की आप प्रोपोर्शनल डिफरेंट कर सकते हैं, प्रोपोर्शन डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो चलो प्रीलिम्स बहुत पास है, उनके लिए जो 25 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप अभी अपना मेंस के नोट्स बनाइए, और प्रीलिम्स की जो किताबें हैं जो हमें बहुत बार पढ़नी है उनको धीरे धीरे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, क्योंकि वो अभी टाइम लेगी। मेरे को याद है कि पहली बार जब मैंने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी तो मुझे 3 months लग गए थे, तो वो लगेंगे। तो आप अभी मेंस के नोट्स के साथ अगर आप देते जाएंगे तो लास्ट में बस आपको एक कि हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, नाउ इट्स जस्ट अबाउट रिविजन एंड मेमोरी। एनवायरनमेंट आपने नहीं पढ़ा है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एनवायरनमेंट? आई थिंक कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक में क्या होता है कि एनवायरनमेंट में भी 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज द मैपिंग पार्ट, सेकंड इज द करंट अफेयर्स पार्ट, एंड थर्ड इज द स्टैटिक पार्ट। तो आप तीनों में से देख लीजिए पीवाईक्यू एनालाइज करके कि किस में आपने कवर किया है। जैसे कि अगर हम ज्योग्राफी का मैपिंग पढ़ते हैं तो हम एनवायरनमेंट का मैपिंग भी पढ़ लेते हैं एक साथ में। वैल्यू एडिशन के लिए टॉपर कॉपीज, फिर न्यूज़पेपर्स, और जैसे मेरे को याद है कि अगेन शून्य आईएएस की एक डेटा कंपाइलेशन करके एक हैंडआउट आता है, तो वो मैंने रेफर किया था। उसमें डेटा ऐसे बिल्कुल कि वुमेन रिलेटेड, और उसके कुछ डेटा पॉइंट्स की सेक्स रेशियो कितना है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये परसेंटेज, तो वो मैंने रेफर किया। टॉपर कॉपी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, आपको सर्च ही नहीं करना पड़ेगा बाहर, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस 25 के लिए आई आंसर्ड। हाउ मच रीडिंग, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू मेक नोट्स? सो फर्स्ट रीडिंग में ऑब्वियसली नहीं होगा। मेरा ऐसा था कि 3 रीडिंग के बाद मुझे समझ आ जाता था कि ओके दिस इज व्हाट इट डिमांड्स, नाउ विल मेक द नोट्स। सो 3 रीडिंग तो आई वुड से मुझे लगा। आप अपना देखिए, अगर आपको समझ आने लग गया है टेक्स्ट तो 3 रीडिंग्स के बाद आप नोट्स बनाने लग सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन आ रहा है कि याद नहीं होता, तो उसके लिए आई हैव आंसर्ड कि आप रिवीजन कीजिए, और अपना वो आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस टाइप के हैं। जैसे कभी-कभी जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मुझे स्क्रिबल करके याद अच्छा होता था कि जब तक मैं अपनी राइटिंग में उसको ना लिख लूँ, तो मैं इंटरनलाइज़ नहीं कर पाती कि यार डायग्राम बना दिया। से मॉनसून का कुछ कॉन्सेप्ट हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। अब मुझे अपने ही वो लेके पेन एंड पेपर से मेरे को अच्छे से अपना खुद का डायग्राम समझना है कि अच्छा दिस इज़ हैपनिंग। तो ये आप देख सकते हैं कि आप स्क्रिबल करके याद भी कर सकते हैं, या किसी को पढ़ा दीजिए कि ओके सो दिस कॉन्सेप्ट मुझे अभी समझ आ गया है, सो नाउ आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस।
तो आप किसी को भी पकड़ लीजिए, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेंबर्स हो, और उनको समझा दीजिए। Analyze PYQ, I have already talked about it. नोट्स के लिए आई हैव टॉक्ड अबाउट इट कि आप सिलेबस वाइज नोट्स बनाइए मेंस के। एंड सिलेबस एनालाइज, सिलेबस कैसे एनालाइज करना चाहिए, सी सिलेबस के लिए सिलेबस को साथ रखिए, पीवाईक्यूज को साथ रखिए और टॉपिक कॉपीज को साथ रखिए। तो जैसे मान लो कम्युनलिज्म, ओके दिस इज अ टॉपिक, हमने इसका बेसिक सोर्स पढ़ा, हमने फिर इसके पीवाईक्यूज देखे। सो पीवाईक्यूज में हमें पता चला कि अच्छा कम्युनलिज्म को इन्होंने कभी कभी रीजनलिज्म से लिंक किया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट से लिंक किया हुआ है, तो ये मेजर कन्वर्जिंग थीम्स है जो हमें प्रिपेयर करनी है। फिर उसके बाद टॉपिक कॉपीज हमने देखी, उससे हमने देखा कि अच्छा ये कुछ फ्रेमवर्क होता है कम्युनलिज्म में जो ये आना ही चाहिए, और ये कुछ वर्ड्स है कि सर्व धर्म संभव ऐसे करके कुछ बेसिक कीवर्ड्स है जो कम्युनलिज्म के आंसर में झलकने ही चाहिए। तो ये एक स्टेज हो गई। अब हमें पता चल गया कि हमें अब अपने नोट्स में ये सब ऐड करना है, डेटा डायग्राम कीवर्ड्स कंक्लूजन में ये। तो हाँ जी, मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखे, सो मल्टी डायमेंशनल के लिए अगेन फ्रेमवर्क रेडी करना। जैसे मैं काफी बार हर एक प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ कि इन्वायरमेंट के लिए मेरा फ्रेमवर्क था लॉ भाई। तो आप मुझसे पूछे इम्पैक्ट ऑन लैंड, लॉ भाई मतलब लैंड, एयर, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, हजार्ड एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। ओके, how many mocks did you attempt for prelims? I think this year I attempted around 20, और मेंस के लिए मैंने एक अभ्यास वाला जो सिमुलेटर्स आता है, जो आई थिंक या सिमुलेटर टेस्ट दिया था। और फोरम के एमजीपी में आई हैव गिवन, आई थिंक एक दो टेस्ट को छोड़ के आई हैव गिवन ऑल दी टेस्ट, आई थिंक 12 टेस्ट आते हैं उसमें। सो इतना मैंने दिया। एंड सी सैट को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी, ओके बिल्कुल, अब सीसैट का पेपर टफ आ चुका है, तो अभी हमें अपनी स्ट्रैटेजी भी वी हैव टू चेंज। तो मेरे को ये था कि मैं एक ही सब्जेक्ट ज्यादा समय तक नहीं पढ़ूंगी। सेम मैंने मैथ्स कुछ क्वेश्चन किया, इजी डन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया टफ है, बट उसमें बहुत वेरिएबल्स है। नाउ आई स्टार्ट गेटिंग पैनिकी, तो अब मैं कॉम्प्रिहेंशन पे चली जाऊंगी कि ओके 2 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए, नो वरीज, एक टफ आया, ओके एंग्जाइटी स्पाइरल हो गई है, नो वरीज। तो अब हमने कॉम्प्रिहेंशन वाले सॉल्व करते गए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाज माय फोर्टे, मुझे वो इजी लगता था। तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन के करे, नाउ आई बिकम कॉन्फिडेंट कि ओके क्वेश्चंस हो रहे हैं। फिर से आई गो टू मैथ्स के क्वेश्चंस, ओके सॉल्व किए, थोड़ा टफ है, टाइम ले रहा है, ये इजी था, ये हो गया, ये हो गया, अगेन एक क्वेश्चन आएगा जो आपको थोड़ा फंसा देगा। तो उसमें भी ईगो में नहीं हो जाना है कि आई नीड टू डू दिस, ठीक है दिस क्वेश्चन वी कैन स्किप, नाउ वील गो अगेन टू द पैसेज। तो पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर से मैथ्स पे आ जाइए। तो ऐसे आप मिक्स एंड मैच करके पढ़ेंगे तो स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। एनसीईआरटी नोट मेकिंग, नो आई डिड नॉट मेक नोट्स फॉर एनसीईआरटी बिकॉज आई थिंक कि वो बहुत ही छोटी बुक होती है, साइड में स्क्रिबल करके भी हो जाता है। बट अगर आपको कभी कभी जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा तो ऑप्शनल था, सो आई डिड नॉट मेक, बट यू कैन मेक नोट्स। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग। एथिक्स की स्ट्रेटजी आई हैव डिस्कस्ड, उसमें भी आई वुड से फ्रेमवर्क्स बनाने एंड केस स्टडी और थ्योरी को थोड़ा अलग, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। पीवाईक्यू एनालिसिस आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। अगर आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सो गेट अ हैंग ऑफ द सिलेबस। और अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तब आप 11th 12th के एनसीईआरटी रेफर कीजिए। और वो भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आप से 6th से शुरू कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज ही बैकग्राउंड था, तो मुझे ये इशू नहीं फेस किया मैंने। वैल्यू एडिशन, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। उसके लिए भी हमारा फोकस तो लिमिटेड ही है ना, तो आप उसको देखिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। एंड आई वुड से कि बी वेरी स्मार्ट, आई मीन जैसे मैं एग्जांपल दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, एक ही क्वेश्चन आता है इससे। अब इससे आप एक हफ्ता नहीं पढ़ सकते, एक दिन में यू हैव टू कवर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट करके अप्रोच अपनी कि इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है मेंस में, तो वील डिवोट लेस टाइम, प्रोपोर्शनल टाइम देना है। अब ऑप्शनल को बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो वो समझ भी आता है, क्योंकि उसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं, राइट। हाउ टू मेक स्ट्रक्चर्स जो है ना वो खुद ही बन जाएंगे। आप अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा फ्लड्स का, एक टॉपिक पढ़ा फॉरेस्ट फायर का, एक टॉपिक पढ़ा अर्थक्वेक का, लैंडस्लाइड का, अब सब में ना कुछ कॉमन चीजें हैं। जैसे प्री अर्थक्वेक कुछ बात हो रही है, ऐसे प्री फ्लड कुछ बात है, फिर ड्यूरिंग फ्लड कुछ बात है, पोस्ट फ्लड कुछ बात है।
अब ये सब पढ़ के हमने देखा कि एक साइकिल बनेगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, और ये एक आई थिंक पीवाईक्यू में भी कहीं ना कहीं तो मेंशन है ये साइकिल। तो अब मुझे पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ये प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट और उसमें बेसिक कीवर्ड्स आई कैन यूज इट इन एनीवेयर। तो अब ये ऐसे एकदम से आपको कहीं मिल नहीं जाएगा। आई मीन स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क्स एंड ये सब आपका खुद की क्यूरियोसिटी से यू शुड डेवलप। यस, आई विल शेयर माय लिंक। एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, और हर सब्जेक्ट के लिए नहीं, बट पॉलिटी के लिए ज़रूरी है, इकोनॉमी के लिए आई डिड नॉट रीड, एनवायरनमेंट के लिए मैंने पढ़ा था, साइंस एंड टेक के लिए भी पढ़ा था। एंड मैंने जितने भी सोर्सेज रेफर करे हैं उसको डिटेल्ड में आई विल बी शेयरिंग। आई हैव शेयर्ड पीडीएफ एंड इट आई थिंक इट विल बी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. So yes, I think that's about it. Now the questions are being repeated. So yes. Uh, all right. So any more doubts? Anybody apart from this? मोटिवेशन, हाउ टू कीप इट अप। सो आई वुड से मोटिवेशन कभी भी हमेशा ऊपर नहीं रहती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। बट अगर हमें है कि हमें रोज इतने घंटे पढ़ना ही है और रोज हमें ये प्रोसेस फॉलो करना ही है, तो हम कभी तो खुश होंगे, कभी दुखी होंगे। किसी दिन हम मान लो एंक्शियस भी है, दुखी भी है, बट हम पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद हम आप वापस से खुश हो जाएंगे कि ओके वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। हमें जब हम लो मोटिवेशन पे होते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते, तब हम एंग्जाइटी के स्पायरल में चले जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? If you want to give the exam, how would you go about it? What would be your timeline? Okay, so my timeline would be to focus on basic sources अभी, 2-3 बार उसको रीड किया, फिर उसके नोट्स बनाए, एंड कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया पीवाईक्यू से, टॉपर कॉपी से, और ये सो आई विल बी वेरी फोकस्ड ऑन मेंस। तो धीरे धीरे प्रीलिम्स का जो बेसिक बुक्स है वो आई विल रिवाइज, और जो एग्जाम का ईयर है उससे जो से जनवरी या फरवरी से, इफ इट इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई विल बी वेरी प्रीलिम्स फोकस इन दैट। हाउ वाज योर मार्क्स इन स्टार्टिंग? मार्क्स मार्क्स बहुत ही कम। मेरे को याद है कि मेरे 32 मार्क्स भी आए हुए हैं प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में। बट आई वाज श्योर कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही एब्सर्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। या तो हमारे कम मार्क्स क्यों आते हैं, या तो हमने रिवीजन ढंग से नहीं करी, या कुछ उन्होंने क्वेश्चन ही गलत पूछा। तो हमें एक एक सेंस होना कि हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, हमने सच में पढ़ाई नहीं करी, या फिर ये पेपर ही ऐसा था। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे हुए हैं, जिसका हमें पता है नहीं आना है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ में कभी भी ऐसा थीम आया ही नहीं है। तो उसमें आप थोड़ा-सा निश्चिंत हो जाइए कि कोई बात नहीं। मेरा प्रीलिम से मैं आपको बताऊँ कि आई थिंक जो हम सिमुलेटर्स देते हैं, उसमें एक में मेरे 50 समथिंग मार्क्स थे, राइट? सो दिस इज़ जस्ट आई मीन व्हाट डू यू कॉल इट? You should not be demotivated and demoralized by the low scores, but uh, consistency. अच्छा, कंसिस्टेंसी अगेन आई वुड से दैट काउंट योर आवर्स। अगर आपके काउंट हो रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स डेली की, ओके आई हैव स्टडीड दिस, तो आप कंसिस्टेंट है। कभी कभी अगर छोटा मोटा ब्रेक भी लेना हुआ, तो देन यू कैन टेक ऑल्सो, बिकॉज यू हैव डन उस टाइम का वर्क। सो डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। सो आप डिसिप्लिन रहे तो आप 1 घंटा थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, तो आप बर्न आउट नहीं होंगे। नेक्स्ट डे फिर आप बैठ जाएंगे पढ़ने। थोड़ा सा बर्न आउट हुए तो ब्रेक ले लिया, तो नेक्स्ट डे फिर। तो ऐसे ब्रेक और अपना स्टडी आवर्स को अच्छे से आप मैनेज करेंगे तो कंसिस्टेंट रहेंगे। और मेरा ऐसा तो था कि 15 दिन में एक ब्रेक आई विल गो समवेयर आउट, क्योंकि आप इतना कभी-कभी हमारा एंग्जायटी लेवल ही बढ़ जाता है, या वी नीड सम नोवेल्टी, तो आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, राइट? करंट अफेयर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अ, एनसीईआरटी ओनली फॉर ज्योग्राफी, डिटेल एक्सप्लेनेशन, यस। एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के नहीं होगा। आप जीसी लियोंग एक बुक है वो रेफर कीजिए। और मैंने कभी कभी जो अगर कोई टॉपिक जैसे मैपिंग का, मैंने सुदर्शन गुज्जर सर का जो यूट्यूब चैनल है वो रेफर किया था। वो काफी वो काफी इजी वे में पढ़ाते हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। एथिक्स आई हैव डिस्कस्ड। वन डे कैन वी क्रैक वन डे? I do not have a Telegram channel. I'll be sharing my drive links. May I'll upload my notes and structures. Okay, so I'll take the last question. That is, how do you manage the time between prelims and mains? So that time is really crucial. Everybody knows. So I know कि last attempt में, previous attempt में, I was so anxious.
of the CSAT and GS marks कि I think that I'll not be able to make it the prelims the first time. So उसमें मैंने 15 दिन वेस्ट कर दिए जब तक रिजल्ट नहीं आया इन जस्ट दिस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। और उसमें मैंने क्या पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है क्योंकि मेंस में इतना वेटेज है ही नहीं उसका। दिस टाइम आई नो कि टाइम इज वेरी लिमिटेड, 3 ही मंथ्स है, सो आई गिव माई ऑल। तो प्रीलिम्स हुआ, अगले दिन से आई सैट ऑन द टेबल और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वील स्टडी। तो ऑप्शनल पे आई हैव गिवन टाइम और कुछ एथिक्स पढ़ लिया। सो मैं हमेशा 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेके पढ़ती थी ताकि बोरियत भी ना हो और प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहे। तो दिस वाज माय शेड्यूल कि पहले 1 महीने में पूरा टेक्स्ट रिवाइज़ किया और फिर टेस्ट दे दिया। नेक्स्ट मंथ में टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, रिवीजन कम हो जाएगी। आखिरी के जो 15 डेज़ है उसमें सिम्युलेटर टेस्ट होंगे और मतलब लास्ट मंथ की 15 फर्स्ट 15 डेज़ में, लास्ट 15 डेज़ में रिवीजन, फ्रेमवर्किंग का रिवीजन करना, इंटरलिंकेजेस बनाना। सो दैट वाज़ माय की। और कुछ बहुत ही रिवीजन रेडी नोट्स जो उस दिन मुझे काम आने वाले हैं, क्योंकि देखिए ऐसे होगा, फिर जीएस 1-2 एक दिन में, फिर जीएस 3-4 एक दिन में। तो हमें अपने बहुत छोटे नोट्स बना लेने पड़ेंगे जिससे कि हम जल्दी रिवाइज़ कर पाएँ, जो हमें टाइम कम रहता है। और ये भी है कि जो हम एकदम एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जा रहे होते हैं, तो वो हमें एकदम हम लिख भी देते हैं आंसर्स में, है ना? तो दिस वी शुड डेफिनिटली मेक। एंड PSIR, I did not have that option. I think I've taken your doubts, and thank you so much for your time and attention. And I hope you all come out of the preparation journey with flying colors. And thank you so